Bismillahirrahmanirrahim. Last time we were discussing Lagrange mean value theorem, Cauchy mean value theorem, and similar things. And I discussed some of these problems last time. Did I? Yes, sir. आपने सबके proofs और examples करवाए थे. ठीक है ना? So the corresponding exercise in the book is this. I will not suggest that you can go through every question, but I will discuss some of these questions today and move forward. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. So I'm talking about this exercise related to mean value theorems. So I start with considering question number 3 of this exercise. What does question number 3 says? It says that deduce Lagrange mean value theorem by considering the derivable function this. मेरे ख्याल इसकी भी मैंने आपसे कुछ बात की थी कि आप Lagrange mean value theorem के प्रूफ में हमने एक टेम्परेरी फंक्शन बनाया था जो कि phi x plus is equal to fx plus ax था. अब यहाँ इसे कर रहा है इसके जरिए वही प्रूफ डेवलप करें. तो आई होप यू कैन डेवलप दैट. सम अलजेब्रिक स्टेप्स आर चेंज्ड, जिसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है कि phi x अगर है तो व्हाट विल बी phi a. दिस टाइम phi a is 0 and phi b is this. Now phi function should satisfy Rolle's theorem, for which a can be suitably selected. Phi a or phi b are equal. That gives you a is equal to this much, and taking derivative of phi, there is a simple step that tells you that a, which was previously slope of secant line, is same as the derivative. The question number 4 says that there is a root between two roots of this equation. This equation can have multiple roots, and you have to show that between two roots, there is at least one root of let me show you the original question. Prove that between any two real roots of this equation, there is at least one real root of this equation. Now, any equation having two real roots, that means अगर मैं इस equation को fx is equal to 0 की फॉर्म में रखूं तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी when x is a root. तो दो रूट हों तो एक रूट अगर a ले लिया जाए और एक रूट b ले लिया जाए, what happens? तो अगर मैं एक रूट a और एक b ले लूं तो फंक्शन e पावर x sin x minus 1. थोड़ा जूम कर दें. जूम क्यों नहीं हो रहा? नहीं सर, प्लस दबाएं वो जो. यार कंट्रोल प्लस होता है ना. ये मुझे कह रहा है कि 200% हो गया, लेकिन हुआ तो नहीं है. नहीं सर, ऊपर भी एक प्लस बना हुआ है ना, उस पर क्लिक करके देख लें. ये वाला जी हो गया. ओके ओके, दैट्स इट. इसको मैं मिनिमम कर दूं.
हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि साइन ई पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 1 को हम इस फॉर्म में रख लेते हैं, और अगर ए और बी इसके दो रियल रूट कंसीडर कर लें तो x इज इक्वल टू ए के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और x इज इक्वल टू बी के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. दैट मीन्स दिस इक्वेशन विल बी any function this fa is equal to 0, fb is equal to 0. तो एंड पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस है ओवर द इंटरवल, एनी इंटरवल, साइन भी कंटिन्यूस, ई पावर एक्स भी कंटिन्यूस है, किसी भी इंटरवल पर ये कंटिन्यूस होगा. और अब चूंकि ए और बी रूट्स हैं तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी आ रहा है, तो इसका मतलब है मुझे इसका डेरिवेटिव किसी न किसी पॉइंट पे 0 मिलेगा. सो व्हाट्स द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज दिस, so this should be 0 at some point. अच्छा जी, इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो ए और बी के दरमियान आना चाहिए. दैट इज व्हाट रोल्स थ्योरम सेज कि डेरिवेटिव किसी न किसी पॉइंट पे बिटवीन ए एंड बी शुड बी 0. तो डेरिवेटिव हमने निकाल के हमने इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया. देखें कि इस फंक्शन का उस इक्वेशन से क्या ताल्लुक है. And that relation is developed using that ताल्लुक, और वो इक्वेशन हमने यहाँ डिराइव कर ली from this. Originally e power x sin x is equal to 1 था, जिसको मैंने किस तरह से लिखा? sin x is equal to e power minus x, so e power minus x minus sin x is equal to 0. इस फॉर्म में लाके भी वो वही सारी कंडीशंस हैं और फिर इसका डेरिवेटिव लिखा. इसका डेरिवेटिव जब हमने इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में डेरिवेटिव ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ये डिराइव नहीं हो रहा था, लिहाजा हमने फॉर्म चेंज करके डिराइव कर लिया. So we obtained this equation, and that shows that between any two real roots of this equation, there is a root of this equation which is in nothing but f prime. सर हमने फॉर्म कैसे चेंज कर ली? हाँ, फॉर्म कैसे चेंज कर ली अभी बताता हूँ. फॉर्म हमने ऐसे चेंज की है. ये जो मेरे पास ये जो फॉर्म है, ओरिजिनली क्वेश्चन जो था वो e पावर x sin x इज इक्वल टू 1 लिखी हुई थी फॉर्म, जिसको मैंने यूं करके किया. मैंने कहा इससे मतलब इससे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह इस फॉर्म में आ रहा है, जिससे कि रिक्वायर्ड रिजल्ट के e पावर x cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा था. इसको इसमें कन्वर्ट करना, ये भी डेरिवेटिव. सर आपने जब e पावर x कॉमन लिया तो sin x प्लस cos x होगा ना, तो वो तो 1 हो जाएगा. हाँ, cos x नहीं, होगा. 1 नहीं होगा सर. 1 नहीं होगा. मैंने इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखा और फिर इस ओरिजिनल फॉर्म से इस फॉर्म में ले गया. ये ओरिजिनल फॉर्म थी, और फिर इसको इस तरह से लिखा. अब इसकी वैल्यू एट ए और इसकी वैल्यू एट बी, क्योंकि ए और बी सर ये तो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होना चाहिए ना. अरे बेटा, मैंने यहां से पाथ चेंज कर दिया. मैंने कहा कि अब मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिया, इससे e पावर x को राइट साइड पे ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जिससे फंक्शन बन गया e पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. यही इक्वेशन है बट पुट इन द डिफरेंट फॉर्म. अलजेब्रिकली मैं इसको आगे पीछे करके अब इसके ऊपर जो है मैं रोल्स थ्योरम लगा रहा हूँ. x इज इक्वल टू ए पे को रूट है, x इक्वल टू बी पे रूट है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. और इन बिटवीन देयर विल बी अ पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव ऑफ दिस शुड आल्सो बी 0. सो अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिखा, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंड दैट गिव्स मी दिस इक्वेशन, एंड that can be reduced to this form. Let me tell you one thing. रोल्स थ्योरम आपसे क्या कहती है? रोल्स थ्योरम कहती है कि फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो. तो इस सूरत में आपके पास इंटीरियर पॉइंट पे किसी न किसी इंटीरियर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है. ठीक है. अच्छा, अब अगर मेरे पास कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होने के साथ साथ 0 भी है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन वैल्यू बीइंग 0? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन वैल्यू बीइंग 0
it means that equation fx has a root x is equal to a, x is equal to b. This means equation, what means, ये दोनों मिलके ये, this means equation has two roots roots at x is equal to a and b. अच्छा जी, चलिए मैंने जनाब कहा कि ये a पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, b पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, अदरवाइज फंक्शन क्या है मुझे नहीं पता। जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। सो रोल्स थ्योरम हमें ये बता दी कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसपे डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को एक्सप्लॉइट करें आप, तो f prime is equal to f prime at c is equal to 0 means कि जो डेरिवेटिव फंक्शन है has a root, this is derivative function, has a root at x is equal to c. Let me repeat, मेरे पास एक फंक्शन है जो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है। रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करने का मतलब है एंड पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यू सेम है और उसका डेरिवेटिव इंटीरियर पॉइंट पे 0 है। अब मैं फंक्शन को एज ए फंक्शन इक्वेशन कंसीडर करूं और फंक्शन की वैल्यूज एट एन पॉइंट 0 लूं, तो एफ ए 0 एफ बी 0 मीन्स ये जो फंक्शन है इन दो इक्वेशंस की वजह से हमें ये बता रहा है कि फंक्शन इक्वेशन जो है हैज रूट्स एट ए एंड बी। और रोल्स थ्योरम की इंटरप्रिटेशन एफ प्राइम डेरिवेटिव फंक्शन हैज अ रूट एट सी। सो ये आइडिया है इस क्वेश्चन के पीछे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर ये तो सब समझ आ गया था सर, उस पीछे क्वेश्चन में एक चीज नहीं समझ आई बस। वो अलजेब्रिक स्टेप, अलजेब्रिक यस सर, स्टेप कि वो माइनस साइन एक्स कहाँ से आ गया सर इस वाले के अंदर। हाँ जो ये आपने फोर्थ लाइन लिखी हुई है e टू द पावर माइनस एक्स, ये समझ आ गया, लेकिन e टू द पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो सर ये जो माइनस साइन एक्स है ये किधर से आया है? आहा आहा, इस इक्वेशन को गौर से देखो, ओह कौन अब सी समझ चीज आ गया सर। कौन सी चीज किधर गई है। राइट हैंड साइड पे लेगा ना। अब जाहिर है कि ये तो मैं करता रहूंगा और इसको तुम्हें फॉलो करना होगा। प्लीज ट्राई टू फॉलो। अच्छा जी, अब इस एक्सरसाइज के जो सवालात हैं कुछ इसी नौयत के हैं। अगला सवाल जैसे है, a function is continuous on the closed interval a minus h a plus h and derivable on open interval a minus h a plus h. Show that this, ये बीच में जो है ये इक्वालिटी का साइन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें उसने हिंट दिया है कि मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करो फॉर दिस फंक्शन। तो मैं इसको आपके एक्सप्लोरेशन के छोड़ दूंगा। ट्राई एक्सप्लोरिंग दिस थिंग योरसेल्फ। हाँ, मैंने शायद यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ना कुछ आपको करके दिया हुआ है। बल्कि प्रूफ किया हुआ है, इसको जरा खुद समझने की कोशिश करो। देन क्वेश्चन नंबर 6 and question number 6 says what? ये कौन सी फाइल है? नहीं, ये तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइल। Going back to question number 6. If function is twice derivable over the interval a to a plus h, then show that fa is equal to fa plus h is equal to fa plus h prime f h times f prime a
h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम एट a प्लस थीटा h। इस तरह का एक रिजल्ट हम पहले प्रूव कर चुके हैं। वहां पे जो रिजल्ट प्रूव किया था हमने, वो मैं आपको याद दिला दूं, ये या इंटरवल ए बी लिया था, अब उसने इंटरवल ए से a प्लस एच लिया है और आपसे तो कहा बात एक ही हुई, बात तो एक ही हुई, बट डिफरेंट नोटेशन में। अगर वही रिजल्ट तुम उसके अलजेब्रिक स्टेप सही तरह से करोगे तो मजा आएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 says, f prime g prime continuous and differentiable, and then show that between a and b there is a point c where this equation is valid. देखो ये sort of extension है Cauchy mean value theorem का, where functions were continuous या functions के derivatives continuous दिए हुए हैं, तो second derivatives के बारे में क्या रिजल्ट आएगा वो आपसे कहा गया कि ये प्रूफ करके दिखाइए, और हिंट दे दिया अप्लाई रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन दिस। वो जो तुम लोग पूछ बैठे जी ऑक्सिलरी फंक्शन जो है वो fx प्लस ax क्यों ले लिया या fx प्लस a टाइम्स gx क्यों ले लिया, अब ये उसकी प्रैक्टिस करा रहा है आपको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है इस्तेमाल होनी है, लेकिन not on the functions f and g but the derivatives of the function which are given to be continuous and differentiable। तो कह रहा है कि ये लाने के लिए अब तुम ऑक्सिलरी फंक्शन या टेम्परेरी फंक्शन ये इस्तेमाल करो। So I think I have done something about that also। फिर हमें हर दफा ऑक्सिलरी फंक्शन बताया जाएगा? जाहिर है कि अगर मैं क्वेश्चन आड़ा तिरछा करूंगा तो बताऊंगा। नहीं, मैंने 7 अगर आप सीधा भी दे दें तब भी बता दीजिएगा। एक्सप्लोर इट योरसेल्फ छोड़ दिया मैंने, जबकि इसके बजाय मैंने 8वां क्वेश्चन पकड़ा है, which will be the last that I'll consider। 3 फंक्शन है f, phi और psi जो इस इंटरवल पे कंटिन्यूस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। Then show that there is at least one interior point between a and b such that ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट की फॉर्म जो है उस पर गौर करो। फर्स्ट कॉलम इज फंक्शन वैल्यूज एट ए, तीनों फंक्शन की। सेकंड कॉलम इज फंक्शन वैल्यूज एट बी, तीनों फंक्शंस की। लास्ट कॉलम इज डेरिवेटिव वैल्यू एट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ऑल द 3 फंक्शंस। वो कह रहा है साबित करो कि ये बराबर है 0 के, और ऑक्सिलरी फंक्शन उसने दे दिया कि रोल्स थ्योरम अप्लाई करो इस फंक्शन पे, विच इज मेड आउट ऑफ determinant of function values at a, function values at b, second column, and the functions in the third column, and that is the auxiliary function. Let us see how we bring out that result from the given auxiliary function. ये प्रूफ करना है। अब phi f जो है कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो मीन वैल्यू थ्योरम ये हो जाएगी। Get it? मीन वैल्यू थ्योरम वैसे तो है f प्राइम c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, लेकिन मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है? एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस ए टाइम्स एफ प्राइम एट सी। एफ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, we get this result from mean value theorem, Lagrange mean value theorem. Phi continuous and differentiable, we get similar result for phi. Psi continuous and differentiable, and we get this result. Now look at this result. हमने इसको सहन में रखते हुए हमें हिंट दी गई है कि टेम्परेरी फंक्शन ये लीजिए। ये हिंट थी क्वेश्चन के अंदर कि टेम्परेरी फंक्शन जो है डिटरमिनेंट फॉर्म में लीजिए। पहला कॉलम कांस्टेंट, फंक्शंस वैल्यूज एट ए कांस्टेंट, दूसरा कॉलम कांस्टेंट, सो फंक्शन वैल्यूज एट बी, एंड दिस इज सच अ फंक्शन वेयर g satisfies Rolle's theorem, so there is some point where the derivative of the determinant function will be 0,
अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे कोई कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं किया, सोच रहे होंगे, सोचते रहें। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके लिख तो सकते हो ना, तो एक नहीं कई कांस्टेंट्स आएंगे। अगर तुम लोग चाह रहे हो तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके दिखाओ, खुद करके देखना यार। एफ एक्स, फाई एक्स और साई एक्स ये फंक्शंस हैं, इनके कोफिशिएंट्स आएंगे जो कि इन कांस्टेंट से बने हुए हैं। तो ये जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है इसमें बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, विद द कंडीशन के जी ए इज इक्वल टू जी बी। अच्छा भाई, ये फंक्शन ए और बी पे इक्वल क्यों होगा? लेट अस थिंक अबाउट दैट। अगर मैं x की जगह a रख दूं तो ये एफ ए, फाई ए, साई ए, पहला और तीसरा कॉलम सेम हो गया, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गई? 0। अब x की जगह b रखो, एफ बी, फाई बी, साई बी, अब दूसरा और तीसरा कॉलम सेम हो गया, तो जी बी की क्या वैल्यू आई? 0। सो जी ए और जी बी बराबर आ गए ना। जब जी ए और जी बी बराबर आ गए तो ये फंक्शन जो है इसके अंदर, दिस इज मेड आउट ऑफ 3 कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो रोल्स थ्योरम जी एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, सो जी प्राइम एट सी शुड बी 0. So I have worked it out all these steps, and last में g prime मैंने डायरेक्टली लिखा है from here to here. मैंने डेरिवेटिव अगर इसको एक्सपेंड करके उसके बाद डेरिवेटिव लूँ तो फिर वापस इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लूँगा तो डेरिवेटिव इन्हीं प्लेसेस पे आएंगे, क्योंकि इन फंक्शंस के अलावा बाकी जो कोफिशिएंट्स आएंगे इन फंक्शन के वो सब कांस्टेंट्स होंगे। तो मुझे डेरिवेटिव का इस डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव लिखने के लिए डिटरमिनेंट को खोलने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जी प्राइम एक्स कांस्टेंट कॉलम नॉट इफेक्टेड वेरिएबल कॉलम उसके डेरिवेटिव ले लिया। बट रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होने की वजह से जी प्राइम सी 0 है, लिहाजा जब तुम x की जगह c रखोगे तो इज इक्वल टू 0, यानी रिजल्ट जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा। So hence the result. At this I stop discussing this article. इसके आगे अगर कोई सवाल तुम करना चाहो तो जरूर करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। I am moving forward. इस सवाल को दोबारा गौर करना, मैं थोड़ा सा कोशिश किया है कि सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो फौरी तौर पर समझ में नहीं आते, दोबारा गौर करते हो तो फिर समझ में आते हैं। सर ये लास्ट स्टेप है, इसके अंदर रोल्स थ्योरम की वजह से है ना, आपने इसको जी प्राइम सी इक्वल टू 0 किया, एक्स की जगह सी कर दिया जो कि जी प्राइम सी बन गया, और रोल्स थ्योरम जी सेटिस्फाई करता है और जी प्राइम सी को 0 होना चाहिए, लिहाजा जी प्राइम सी को 0 रख दिया, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ गया। और सर एक दफा वापस बता दें हमें कैसे पता चले ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, लाइक जी ए इक्वल टू जी पी वाला पार्ट। अच्छा, तुम्हारे सवाल पे मैंने सवाल कर रहा हूँ तुमसे, कोई भी फंक्शन f रोल्स थ्योरम को कब सेटिस्फाई करता है? किसी इंटरवल ए बी पे। जब सर स्टार्टिंग पॉइंट ए हो और एंडिंग पॉइंट बी और सेम हो दोनों, लाइक एफ ए और एफ बी सेम हो। जी जी, मगर उससे पहले फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी हो। जी ठीक है, जब भी हम इस तरह का कोई रिजल्ट प्रूव कर रहे होते हैं तो हम एक आर्बिट्री फंक्शन बनाते हैं यूजिंग द गिवन फंक्शन, और उस पर कंडीशन लगाते हैं कि वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करे। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जो मैं टेम्परेरी फंक्शन बना रहा हूँ उसको कंटिन्यूस होना चाहिए, उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एंड पॉइंट की उनकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तब इस टेम्परेरी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटीरियर पॉइंट पे 0 होगा। चलो भाई, ये आर्बिट्री फंक्शन या टेम्परेरी फंक्शन है, इसके अंदर x की जगह a रखा, तो भाई ये तो a और b से पहले ही भरे में लास्ट कॉलम में x की जगह a आया, जिसकी वजह से पहला और आखिरी कॉलम सेम हो गया, तो g a की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद gx के अंदर x इज इक्वल टू b रखा,
तो ये तो पहले से ए और बी से भरे में एक्स यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे बी रखा तो सेकंड और थर्ड कॉलम सेम हो गए। जब सेकंड और थर्ड कॉलम डिटरमिनेंट के सेम हो गए तो डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है जी सर। अब जी ए और जी बी बराबर हो गए। जी जी। अच्छा, तो इसका मतलब जी प्राइम सी 0 होगा। जी। अब फंक्शन जी जो है उसका डेरिवेटिव लिखा। फर्स्ट कॉलम कांस्टेंट है, उस पर कोई असर नहीं होगा। सेकंड कॉलम कांस्टेंट है। दरअकीकत फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो है वो थर्ड कॉलम में जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं इनके कोफिशिएंट्स हैं और ये सब कांस्टेंट्स हैं, तो डेरिवेटिव सिर्फ थर्ड कॉलम का ही आएगा। अच्छा, तो 0 आउट हो जाएंगे ना फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो। रुक जा। Let me show you this thing. A times x square b, sorry, not a times x square, मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ। ये कोई फंक्शन है, एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? ठीक है, डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव यहां से लो, क्या आया? 3ax स्क्वायर माइनस 2bx। ठीक है, अब यहां से डेरिवेटिव लो डायरेक्टली। मैंने कहा ये कांस्टेंट कॉलम है तो स्क्वायर छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। क्या ये और ये बराबर नहीं है? सही सर। ठीक है, अब ए बी सी टी ई एफ जी एच आई जे के एल एफ एक्स एच एक्स जी एक्स वाई एक्स। ये 4/4 डिटरमिनेंट है। ये कोई फंक्शन जाई एक्स है। अब मैं आपसे कहूं जाई एक्स का डेरिवेटिव लिखिए। Would you like to expand this determinant and then take the derivative? No, sir. When first three columns are constants, only the last column has functions. तो सिर्फ last column के functions के derivatives लिखेंगे. So I'm not writing down anything. This is repeated as it is, as it is, as it is, and here the primes appear. That is what is done with. मैंने ये 4/4 determinant आपके सामने लिखा है, ये आपको एक हिंट देने के लिए लिखा है। हिंट क्या है? जब भी मैं क्वेश्चन जो है वो किसी तौर पे चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं इस 3/3 डिटरमिनेंट के बजाय तुमसे 4/4 डिटरमिनेंट पूछ लूंगा, नहीं तो 2/2 डिटरमिनेंट पूछ लूंगा। ओके, विद दिस लेट मी प्रोसीड फर्दर। हायर डेरिवेटिव्स, हायर डेरिवेटिव्स। सर मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ पूछो बेटा। सर आप एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत टेंशन हो रही है। जी सर। मैं क्या इस वक्त सर क्योंकि सारे टीचर्स अब बता रहे हैं हमें पॉलिसी, और दिसंबर शुरू हो गया, दिसंबर के एंड में आपकी डेट भी एग्जाम की, तो अब आप भी बता दें कि क्या डिसाइड किया आपने। क्या बताया दूसरे टीचर्स ने? सर मतलब है ना, एक टीचर जैसे हमारी कह रही है कि वो ऑन कैंपस नहीं करेंगी क्योंकि कोविड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और क्लास साइज भी बढ़ा है जैसे हमारा बढ़ा है, तो उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन मतलब टेक होम असाइनमेंट और ऐसा कर दिया है। वैसे कह रही है कि वो करेंगी टीचर्स अपनी मर्जी से जो है अपनी मर्जी से। हाँ, तो फिर उनकी कन्वीनियंस हाँ कन्वीनियंस पे कर रहे हैं डिसाइड। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं सर, नहीं परेशान कर रहे हैं, परेशान पता है क्या है? हम अपनी परेशानी आपसे शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारी अगर कोई परेशानी है तो मैं परेशान नहीं होऊंगा। मेरा बच्चा परेशान होगा तो मैं परेशान नहीं हूँ। तभी तो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो तभी तो मैंने बीच लेसन के आपको रुकवा के बोला है सर। हाँ तो मैं उससे मुझे एक और परेशानी हो रही है उससे कि मेरा लेसन कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम तो होगा जैसे तैसे। नहीं सर, कैसे होगा सर? बस एंड में बता दीजिएगा। यही तो पूछ रहे हैं। कल पॉलिसी इंशाल्लाह IBA जनरलाइज पॉलिसी अनाउंस कर देगा।
एंड जी सर। ओह मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई सितारों वाला वो वाला इल्म नहीं रखता कि कल क्या होगा, लेकिन जिस तरह से आज 3,500 केसेस आ गए पाकिस्तान में, जी रिपोर्टेड सर। केसेस 3,500 आए हैं, तो आप नहीं, मैं भी परेशान हूँ, सब परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। जान है तो जहान है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पॉलिसी आने वाली है वो ये है, मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट डेफिनेट, कि टीचर्स आर गिवन फ्री हैंड द वे दे लाइक टू टेक एग्जाम, बट नॉट फिजिकल एग्जाम। यस सर, मैंने सर हमने neither students are required to come to the campus nor teachers are required to come to the campus. एक चीज। दूसरी चीज ये है कि how teachers evaluate and grade their students is entirely up to the teacher. Teachers are not going to be allowed कि वो सिर्फ पास फेल ग्रेड दें. They are required to grade students on the usual grading scheme. हाँ, उसमें जैसे मैं स्केलिंग किया करता हूँ, कुछ लोग नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी ग्रेड नीचे कर देते हैं, पासिंग ग्रेड 30 पे ले आते हैं, ब्ला ब्ला। बट स्टूडेंट्स आर मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी गिवन द चॉइस कि दे वांट टू बी ग्रेडेड और दे वांट पास फेल ओनली। टीचर को ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो मुझ तक पहुंची हैं कि कल शाम तक या परसों तक जो पॉलिसी बनेगी वो इन खतूत पे बनेगी। और the reasons all these points are under consideration is that जान है तो जहान है भाई, हो जाएगा, देखी जाएगी। मैं फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ, who is taking interest, who is attending my classes, बहुत कुछ ठीक है, 100% रिकॉर्ड नहीं रख पाता, लेकिन मुझे पता चलता रहता है हाँ भाई ये कौन सवाल कर रहा है, हु इज इन्वॉल्व इन द कोर्स। चाहे मकाना सवाल हो, कोई सवाल है मकाना नहीं होता। अभी तो मैं ये नहीं पता चल रहा था कि वो माइनस साइनस के उधर कैसे चला गया, बट यू आर थिंकिंग, यू हैव अ थिंकिंग ब्रेन। हमें ये इवैल्यूएट करना है, हमें ये भी इवैल्यूएट करना है कि आप अब कितनी एनालिसिस जानते हैं, हमें ये भी इवैल्यूएट करना है कि आपने एनालिसिस जानने के लिए कितनी कोशिश की है। सो तुम ग्रेडिंग इवैल्यूएशन की फिक्र छोड़ दो एंड लेट अस थिंक अबाउट हायर डेरिवेटिव्स। ओके? यस सर। और इसकी भी फिक्र मत करो कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा। हाँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा, मुझे तुम्हें इंटीग्रेशन की थ्योरी थोड़ी सी समझानी है। इंटीग्रेशन तुमने रीमान इंटीग्रेशन की थी ना कैलकुलस में, उसको थोड़ा जनरलाइज, जी सर। उसको जनरलाइज करना है थोड़ा सा, मैंने वहां पे खत्म करना है कोर्स। उससे पहले मुझे 2-4 चीजें अभी, मीन वैल्यू थ्योरम किया हमने और फिर हमने कहा लीनियर अप्रोक्सीमेशन है ये, फिर उसके बाद हमने सेकंड डिग्री की अप्रोक्सीमेशन दिखाई और आपको हिंट भी दी कि थर्ड डिग्री अप्रोक्सीमेशन भी हो सकती है। Now I'm talking about higher derivatives only from the perspective of कि I can go, if the function allows me, to approximation of any order, nth order, 100th order, infinite order, and that is what is known as Taylor's theorem, and or I should say the basic is Taylor theorem, and on which we develop generalized mean value theorem. Some people consider Taylor's theorem and generalized mean value theorem as the same thing. So let us look what Taylor's theorem is. Acha, would you like to go to this these pictures of the book, or should I open the file where I have selected some of these things? मैं ये पूरा आर्टिकल नहीं डिस्कस करूंगा, rather I will consider selected parts. Is this size sufficient? जी सर। यस सर। So generalized mean value theorem हमारा पर्सपेक्टिव है, और जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि
लैग्रांज मीन थ्योरम जो थी वो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन करके दिखाया और हमने हिंट दिया कि थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है। तो अब देखें कि ये nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कैसे डेवलप हुआ। The statement is that a function is defined over the interval. Interval अब हम a minus h to a plus h ही consider करेंगे. That means a neighborhood of a, जिस point पे कि हम derivatives consider करेंगे. F is defined over the closed interval. N minus 1 is derivative. That is this is continuous on the interval, closed interval, and nth derivative exists on the open interval. मैंने neighborhood of a तो लिया है, this can be restricted to a plus h, or I can work on a minus h to a. इस वजह से आपको कभी पूरा इंटरवल लिखा नजर आएगा, कभी आधा इंटरवल लिखा नजर आएगा। तो अगर फंक्शन जो है वो उसका n माइनस वन डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, इसका मतलब n माइनस वन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और उससे लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूस है। जबकि nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। इस सूरत में देयर विल बी an interior point of the interval under consideration that is indicated by theta lying between 0 and 1, such that f at a plus h, जिसको मैं रीड करूंगा, the value of the function at neighboring point, वो neighboring किसका neighbor? a का neighbor. So function value at neighboring point is equal to function value at the point plus h times f prime at the point, h square upon 2 factorial f double prime at the point, plus h cube upon 3 factorial f triple prime, so on, n minus 1th derivative term at x is equal to a के कोफिशिएंट जो है वो h पावर n minus 1 upon n minus 1 factorial। अगर n is equal to 11 हो तो समझ लो कि ये h पावर 10 upon 10 factorial 10th derivative, and the next term or the last term which we will calling remainder, ये डिफरेंट फॉर्म्स में लिखी जाती है। जो कुछ अब तक कोफिशिएंट्स आ रहे थे उसमें से h लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म में पावर n माइनस 1 थी तो यहाँ पावर n है, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल था तो यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल ही है, एक एक्स्ट्रा नंबर आया है p। ये सारे डेरिवेटिव्स अप टू n माइनस 1 ऑर्डर a पे लिखे हुए हैं, लेकिन nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो a पे नहीं लिखा बल्कि a और a प्लस h के दरमियान किसी पॉइंट पे लिखा है, जो कि एक इंटीरियर पॉइंट है। जो इंटीरियर पॉइंट जिसको हम c कहते चले आ रहे थे, अब हम उसको एक और पैरामीटर के जरिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर थीटा 0 हो तो ये fa हो जाएगा और थीटा 1 हो तो ये a प्लस h हो जाएगा, मगर मुझे चाहिए इंटीरियर पॉइंट, तो थीटा ना 0 होगा ना 1 होगा, इन बिटवीन होगा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है 1 माइनस थीटा रेज़ टू पावर n माइनस p। ये रिमाइंडर जो है ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी। टेलर्स थ्योरम में जनरली ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। Here p is a given positive integer. As far as the proof of this statement is concerned, कि function f under all these conditions satisfies this expansion. We use a temporary function and we have been using temporary function time and again. अब ये temporary function थोड़ा सा complicated है, मगर हल्के फुल्के कॉम्प्लिकेटेड टेम्परेरी फंक्शंस हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इसमें एक कैपिटल A है जिसके बारे में हमसे कहा है कि ऐसा चूज किया जा सकता है, सो दैट टेम्परेरी फंक्शन फाई इंटरवल a टू a प्लस h के एंड पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू सेम हो ताकि डेरिवेटिव इंटीरियर पॉइंट पे इसका 0 आए, दैट इज रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करे। अब जो इसकी फॉर्मेट है, इसकी फॉर्मेट पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी है।
When we consider Lagrange theorem, यहाँ तक थी. When we consider extension of Lagrange theorem for second order, यहाँ तक थी. And what I suggested for third order derivative, यहाँ तक थी. जो कुछ लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में है? Function at any point x in the interval, b minus x, b minus x, b minus x. This is what we have used previously. जहाँ हमने इस तरह की टेम्परेरी फंक्शंस में b minus x इस्तेमाल किया था, अब वहाँ b की जगह a plus h आ गया. So this is just a change of notation. और लास्ट टर्म जो है, सेकेंड लास्ट टर्म, उसमें b minus x है. और वो टर्म जिसमें कांस्टेंट a आ रहा है, which will help us out in proving this entire result, इसमें भी b minus x raised to power p है, where a plus h is in place of b. So नई नोटेशंस जो इसमें आई हैं वो सारी मैंने आपको बता दी. phi a plus h, इसके अंदर a plus h रखोगे तो क्या बचेगा? इसके अंदर पूरे एक्सपेंशन में x की जगह a रखोगे तो क्या बचेगा? ये सारे अलजेब्रिक स्टेप जो हैं इनको तुम्हें करना है. मैंने करके दिए हुए हैं, इनको फॉलो करना है. डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा उस फंक्शन का पूरा करके दिखाया हुआ है. डेरिवेटिव लोगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा ये पूरा करके दिखाया हुआ है. तो एक ही शक्ल ये हुई, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मगर आई होप अगर तुम एक एक टर्म को अप्रोप्रिएटली जिस तरह से अब तक तुम्हें ट्रेन किया गया है अगर कर लो तो यू विल फाइंड दैट a comes out to be this thing and phi a is equal to phi b रखने से you get this thing, एक रिजल्ट नंबर 4. जबकि डेरिवेटिव निकाल के उस डेरिवेटिव की वैल्यू a plus theta h या c पर मैनिपुलेट करके कैपिटल A की वैल्यू ये आती है. तो जब कैपिटल A की वैल्यू ये आएगी तो यहाँ पे रख देंगे. यहाँ पे जब रखेंगे तो ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा. ना अगर मैं फिजिकली भी क्लास ले रहा होता तो ये सारे स्टेप्स मैं नहीं करता. सुकून से जिस वक्त तुम्हारा जहन फ्रेश हो उस वक्त इसके स्टेप्स को सामने रख के अपने कॉपी पेंसिल पे, ये फाइल शेयर की हुई है, सारी रिसोर्सेज पे हैं, इसको तुम रिप्रोड्यूस करो खुद और एक एक स्टेप की डिटेल खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करो. अगर ये नहीं करोगे तो एक ज़माना था मैं एक किताब पढ़ रहा था जो क्वांटम मैकेनिक्स के मौजू पे थी और उस किताब में हर चैप्टर के शुरू में एक कोई कोट लिखा होता था. तो एक चैप्टर के स्टार्ट में एक कोट लिखा हुआ था जो किसी चाइनीज सोर्स से आया था. तो उसका लुबे लुबाब, द एसेंस ऑफ दैट वाज कि व्हेन आई सी मैथमेटिक्स डन इन फ्रंट ऑफ मी, somebody doing mathematics and I'm seeing it, I retain a little. Oh, sorry. Someone speaking about mathematics, steps of mathematical procedure, I retain only a little. और अगर मेरे सामने कोई लिख के कर रहा होता है तो मैं थोड़ा सा बेहतर समझ लेता हूँ. But the real understanding is developed only when I do it myself. So आप किताब में से भी प्रूफ देख सकते हैं, मैंने जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उससे भी देख सकते हैं, मगर आप ओवरऑल जो तरीक़ाकार है उसको अगर आप समझ गए, ओवरऑल तरीक़ाकार क्या है, एक टेम्परेरी फंक्शन है, उसको इस तरह से बनाया जाए कि टेम्परेरी फंक्शन एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम हो, सो दैट इंटीरियर पॉइंट पे टेम्परेरी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है. द रेस्ट इज ओनली अलजेब्रिक स्टेप्स, equating phi a plus h to phi a and getting one result and taking derivative of phi and equating it to 0 when x is equal to c और a plus theta h, उससे एक रिजल्ट आएगा. उन दो, इस रिजल्ट नंबर 4 रिजल्ट नंबर 5 को मिला के तुम्हारा प्रूफ कंप्लीट होगा. ये मेजर जो इसका स्ट्रक्चर है प्रूफ का, दैट इज रियल थिंग टू अंडरस्टैंड. द रेस्ट इज ओनली अलजेब्रिक स्टेप्स. नाउ हमारे इस रिजल्ट में
मैंने कहा था जो लास्ट टर्म लिखी हुई है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये बड़ी सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, और इसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के साथ ही सारा प्रूफ किया गया है। इट इज़ पॉसिबल दैट मैं आपको, अगर जैसे मैं कहूँगी टेलर्स थ्योरम की कंडीशंस दूं और आप कहूँ कि आप प्रूफ कीजिए ये, तो रिमाइंडर ये लिखने के बजाय मैं p की वैल्यू 1 लिख दूं तो अब रिमाइंडर ये हो जाएगा, और p की वैल्यू n लिख दूं तो अब रिमाइंडर सिंप्लीफाइड हो जाएगा। The first form, which is used in the proof above, is called Schlammeck's form. This p is equal to 1 is Cauchy's form, and p is equal to n is Lagrange's form. This is the most simple form of the remainder. रिमाइंडर की सिग्निफिकेंस क्या है इस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। जब हमने टेलर्स थ्योरम डिस्कस की तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स और फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हमने एम्फसाइज किया कि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे हो। यू नो दैट इफ दिस पॉइंट वेयर वी आर सीकिंग डेरिवेटिव्स, यानी जहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं वो a के नॉन जीरो के बजाय जीरो हो जाए, तो फिर आप उसको मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन कहते हैं। सो मैक्लॉरेंस थ्योरम जो है वो इज जस्ट टेलर्स थ्योरम if a is replaced by 0, और जब हम a को रिप्लेस करते हैं 0 से तो अब 0 से h हमारा इंटरवल हो जाता है, और जहां जहां h था वहां वहां हम x लिख देते हैं। सो मैक्लॉरेंस लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ मैक्लॉरेंस थ्योरम, ये तो श्लामेक्स फॉर्म रिमाइंडर है, लेकिन अगर मैं लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जो सिंप्लीफाइड है उसमें मैक्लॉरेंस थ्योरम ये है। नोट दैट पहले आखिरी टर्म जो कि रिमाइंडर थी, रिमाइंडर कहाँ गए, ये रिमाइंडर में डेरिवेटिव a प्लस थीटा h, यानी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल a टू a प्लस h, ये तीनों रिमाइंडर फॉर्म में। लेकिन जब तुम मैक्लॉरेंस थ्योरम लिखोगे जिसमें a इज इक्वल टू 0 है, तो फिर लास्ट टर्म जो है उसमें डेरिवेटिव एट थीटा एक्स रह जाएगा, क्योंकि अब हमने h की जगह सब जगह x लिख दिया है। असल बात यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और ये चीज के तुम लोगों को एक्सपेंशन निकालना सिखा दिया गया था कैलकुलस में, आई होप। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मैं रिपीट कर चुका हूँ यहाँ भी कि अगर मैं आपसे कहूँ एक्सपेंशन लिख के e पावर x का, एंड यू नो दैट e पावर x का जो एक्सपेंशन है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन, x पावर n is upon n फैक्टोरियल, इट इज अनएंडिंग। मैं अगर मैक्लॉरेंस थ्योरम इस्तेमाल करूं तो वो क्या कह रहा है, मैक्लॉरेंस थ्योरम कह रही है fx इज इक्वल टू f0 प्लस x टाइम्स f प्राइम एट 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम एट 0 सो ऑन। अब मैं ये टर्म लिखने के बजाय x पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल into n minus 1 derivative at 0, और remainder term x power n upon n factorial nth derivative at theta h। ये मैंने इन्फिनिट एक्सपेंशन नहीं लिखा, ये मैंने फाइनाइट एक्सपेंशन लिखा है। हालांकि मैं जानता हूं कि e पावर x कैन बी डिफरेंशिएटेड अप टू एनी ऑर्डर। अच्छा जी, e power 0 1, derivative of e power x at 0 1, second derivative of e power x at 0 1. So these terms, sorry, ये क्या लिख दिया मैंने, x power n minus 1 divided by n minus 1 of the theorem into
n माइनस वन इज डेरिवेटिव, तो e पावर x का हमने अभी कहा था हर डेरिवेटिव e पावर x ही है, at 0 it is 1. So there is. Let us look at this term x power n upon n factorial. We know that e power x का डेरिवेटिव e power x ही है, लेकिन अब हमने लिखना है इसको e power theta h. We're talking about interior point. Now, this is the Lagrange form of remainder. एक मिनट, मैंने थीटा h लिखा है, it should be theta x. Now, जब भी मैं कोई एक्सपेंशन लिखता हूं, ये सारा काम तुम लोग पहले सीख चुके हो. मुझे रिमाइंडर की फिक्र होती है कि जो मैंने एलिमेंट्री लेवल पे लिखा कि चूंकि x के ई पावर x के डेरिवेटिव हर ऑर्डर तक अवेलेबल है, लिहाजा ये इन्फिनिट एक्सपेंशन चलेगा. नहीं, एनालिसिस में मेरा कंसर्न ये है कि इज दिस रिमाइंडर गो टू 0 एज n approaches infinity? That is my question. And I will address this question when I discuss Taylor's and Maclaurin's expansion. When I consider the expansion of any function, मेरा असल concern अब यहाँ पे ये होगा. Only then I say that this becomes an infinite series. अभी तक टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम हमने जो जिक्र किया है वो फाइनाइट है अप टू n. अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि दिस गोज टू 0 एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, देन दिस विल बिकम एन इन्फिनिट सीरीज. उससे पहले ये इन्फिनिट सीरीज नहीं है. अच्छा जी, आई होप यू गेट द मैसेज कि मैंने टेलर या मैक्लॉरिन एक्सपेंशन किसी फंक्शन का लिखना है, वो इन्फिनिट सिर्फ उस सूरत में होगा जब ये रिमाइंडर गोज टू 0 एज n अप्रोचेस इंफिनिटी. अच्छा, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना है? हमने इन्फिनिट सीरीज के जो टेक्निक्स पढ़ी हैं, दे आर ऑल फॉर दिस सेम. अच्छा, इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए या इसकी दिस एज ए सीक्वेंस, इस लिमिट इज 0, मैं डायरेक्टली इसको एज ए सीक्वेंस टर्म कंसीडर कर सकता हूँ. जनरली हम ये किया करेंगे, मॉड में रख देंगे इसको, यानी वो लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है, हमें उसकी फिक्र नहीं करेंगे. नाउ whether this approaches 0 or not, हमें ये नजर आ रहा है सर एक बात पूछनी है. हाँ बोलो सर, लेकिन बहुत स्टूपिड सवाल है. हर सवाल स्टूपिड होता है, आगे बढ़ो. सर, जब n इंफिनिटी पे रीच कर रहा है एंड जो हमारी अगर लिमिट जो है वो 0 आती है, तब हम लोग ये कन्वर्जेंस की कंडीशन होती है, राइट? तो अगर हमारा रिमाइंडर कन्वर्ज कर रहा है तो हमारी जो ये पूरी सीरीज होगी फिर तो ये फाइनाइट होनी चाहिए. ये इनफाइनाइट कैसे हो गई? बहुत अच्छा सवाल है. बिला वजह तुम अपने सवाल को स्टूपिड कह रही हो. बेटा, when n is going to very large number, how many terms I am writing down of this expansion? Infinite. So infinite series हो गई ना. But only in condition when this remainder goes to 0, when n becomes very, very large. When n becomes very, very large, this is a series containing very, very large terms. How large? You think of the largest possible number and the series contains more number of terms than that large number you think. Get it?
ये चीज एश्योर कर रही है कि when n is very large, we are considering infinitely large number of terms of this series. Get it or not? Yes, sir. असल मसला ये है कि लेकिन फिर इसमें रिमाइंडर का रोल क्या होगा? रिमाइंडर का रोल क्या होगा? Remember first order term, first order Lagrange theorem. First order Lagrange theorem is, let me write down. मेरे पास मैंने एक्सपेंस ये कर दिया a plus theta h theta x. किस चीज को लिखा है मैंने? ये एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बार बार लिखता हूं मैं ये, जिसकी ऑल्टरनेट फॉर्म है एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ प्राइम एट सी. चलो इसी को एक्सटेंड करें. ये फर्स्ट ऑर्डर है. सेकेंड ऑर्डर क्या होगी? एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ प्राइम एट ए प्लस बी माइनस ए बाई टू एफ डबल प्राइम एट सी. ये प्रूफ किया था हमने. जी सर. इसकी थर्ड ऑर्डर फॉर्म क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ प्राइम ए प्लस बी माइनस, सॉरी ये स्क्वायर है यहाँ पे, जी, स्क्वायर अपॉन टू एफ डबल प्राइम एट ए प्लस बी माइनस ए रेज टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एट सी. ये मैंने डिस्कस किया था. इसकी फोर्थ ऑर्डर टर्म क्या होगी? सर इसी में बस b माइनस a टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव एट c. तो पहली फर्स्ट ऑर्डर में ये रिमाइंडर था, फर्स्ट ऑर्डर में ये रिमाइंडर था, सेकेंड ऑर्डर में ये रिमाइंडर है, थर्ड ऑर्डर में आई कैन से दैट दिस इज द रिमाइंडर. So, nth order में this is the remainder, and I study the behavior of the remainder in order to make sure that this finite expansion really goes to an infinite series or not, really becomes an infinite series or not. So, मुझे आपके सवाल से असल मैसेज जो है उसको एड्रेस करने का मौका मिला है. तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि तुम्हारे जहन में तुम्हारे सोच के मुताबिक सिलियस्ट आइडिया भी आए तो सवाल पूछो. उसकी वजह ये हो सकती है कि समटाइम्स मैं समझता हूँ मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, मगर मैं गुफ्तगू खान नहीं हूँ, मेरे समझाने में कुछ कमी आ सकती है. लेकिन अगर तुम इस तरह के सवाल पूछोगे तो जो चीज़ ज़्यादा तवज्जो तलब है मैं उस पर ज्यादा तवज्जो दे के तुम्हें समझाऊंगा. अच्छा, फॉर इंस्टेंस यही जो सिचुएशन है हमारे पास, मैंने कहा था कि इसको देखना मैंने कि गोज टू जीरो और नॉट. अब किस कंडीशन में गोज टू जीरो? एन पे डिपेंडेंट है. एन यहाँ अपीयर हो रहा है और नीचे अपीयर हो रहा है. नीचे एन फैक्टोरियल है, ऊपर एन स्क्वायर, एन एक्स रेज़ टू पावर एन है. नाउ एक्स इज बेसिकली एनी रियल नंबर बिकॉज this function is differentiable, continuous, differentiable to any order for the whole set of real numbers. तो मैं कंसीडर करूंगा कि x is finite, is a finite real number. Still, a finite real number raised to power n where n goes to infinity
and its comparison with n factorial when n goes to infinity is not very simple. तो एक तरीका मैं इख्तियार कर सकता हूं. What about Rn plus 1? यानी अगर मैं अगला रिमाइंडर कंसीडर करूं, what is the अगला रिमाइंडर? x n plus 1, x की पावर n plus 1 divided by n plus 1 factorial e पावर, इसमें n नहीं है तो ये थीटा h है. ठीक. आप कहेंगे कि यार ये तो अब मैंने एक खास मकसद के लिए रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स एंड रिमाइंडर आफ्टर n plus 1 टर्म्स लिखा है, और उसके बाद मैं Rn plus 1 अपॉन Rn. कैन यू थिंक ऑफ, मेरे जहन में क्या चीज है? लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट. सर तो अब देखो क्या होता है, x पावर n इंटू x e पावर थीटा x डिवाइडेड बाई ये है ना, आई शुड सेलेक्ट दिस. नहीं, ये नहीं है, ड्रॉ, ये है डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई Rn. तो ये रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन x पावर n e पावर थीटा x. सो e पावर थीटा x का रोल खत्म हुआ, n फैक्टोरियल का रोल खत्म हुआ, x पावर n का रोल खत्म हुआ. अब जो कुछ बचा वो मेरे पास क्या बचा? x upon x plus 1. ये x नहीं, n plus 1. n plus 1. x upon n plus 1. Now this goes to what as n approaches infinity? When x is finite? 0. Lagrange test कहता है less than 1. That means convergent. So एक तरीका रिमाइंडर के कन्वर्जेंस चेक करने का ये है. अब ये तो रिमाइंडर की सीरीज कन्वर्जेंट साबित की ना मैंने, मगर this number goes to 0 or not, that is a different question. यानी सीक्वेंस की nth term un approaches in 0 as n approaches infinity. तो हमारे पास एक रिजल्ट था कि अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसकी जनरल टर्म 0 होगी, 0 पे कन्वर्ज करेगी. रिमेंबर? अच्छा, हमने ये प्रूफ किया था कि इफ दिस सीरीज is convergent, then limit n approaches infinity of un is 0. The converse is not necessarily true. तो मैंने इस वक्त आपके सामने ये इश्यू डिस्कस किया है कि टेलर थ्योरम या मैक्लॉरेंस थ्योरम जो कि फाइनाइट एक्सपेंशन है, जो n टर्म्स के बाद हमें एक रिमाइंडर की फॉर्म दे रही है, जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो लैग्रांज फॉर्म है. ये इन्फिनिट सीरीज जब बनेगी जब हम ये साबित कर दें कि रिमाइंडर अप्रोचेस 0 एज n अप्रोचेस इंफिनिटी. तो हम इस पर फोकस करेंगे. So should I remove the annotation or the whiteboard? Go back to this. अब यहां पे हमने log की एक्सपेंशन लिखी है, log of 1 plus x की. log x की एक्सपेंशन लिखेंगे तो टेलर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी डेरिवेटिव 1 पे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि log x 0 पे डिफाइंड नहीं है, उसके डेरिवेटिव भी 0 पे डिफाइंड नहीं है. तो log x plus 1 को हम 0 पे एक्सपेंड कर सकते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल टू 0,
सॉरी सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव सब 0 पे निकाल लिए हमने। अच्छा 0 पे निकाल लिए तो एक मिनट, nth डेरिवेटिव भी 0 पे निकाल लिया। मैंने कहा कि इसका रिमाइंडर जो है वो अगर मैं श्लोमिक फॉर्म जो सबसे ज्यादा टेढ़ी फॉर्म है उसमें लिखूं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। सो ये वहां से उठा के यहां तक ये पार्ट जो है दिस पार्ट ये तो फॉर्मूले में है, ये डेरिवेटिव में आ रहा है। अगर आप लॉग के डेरिवेटिव्स देखें तो लॉग के डेरिवेटिव्स में ऊपर फैक्टोरियल आ रहा है, और अगर आप x की जगह 0 नहीं रखें तो अगर x की जगह 0 रख देते हैं तो 1⁻k या 1⁻n जो है 1 हो जाता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट k और n फाइनाइट। लेकिन जो रिमाइंडर टर्म है उसमें डेरिवेटिव 1 + θ x पे लिखा जाता है। तो ये वाला पार्ट जो है ये nth डेरिवेटिव है। किसका nth डेरिवेटिव है? ln of 1 + x का at x = θx। x = 0 पे नहीं है, x = 0 पे जो है ना वो सिर्फ फैक्टोरियल के फॉर्म में आया, प्लस माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल्स भी कैंसिल होते चले जाएंगे। दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा जी, अब इस पूरे को ये साबित करना है कि ये रिमाइंडर आफ्टर n terms in Shlomik's form is 0 or not। मैंने डेरिवेटिव अलग लिखा, रिमाइंडर की लैग्रांज फॉर्म कंसीडर कर ली। श्लोमिक्स फॉर्म जो है दैट इज डेफिनेटली नॉट पॉपुलर, हालांकि हम वर्कआउट कर सकते हैं उसमें भी, कॉशी फॉर्म में भी वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ वर्किंग दिखाई हुई है। अरे लैग्रांज फॉर्म में यह आ गया फॉर्म। सो Rn = दिस, इसका मॉड लें तो -1 की पावर जो है वो खत्म हो गई, x⁻n / n 1/1 + θx raised to power n, and we see that 1 + θx lies between 0 and x, और हम जिस इंटरवल पे काम कर रहे थे हमने यहाँ स्टेट किया था कि x belongs to -1 to 1। So Allahu Akbar, my hand is not really in control। सर वैसे भी अब बहुत लंबी क्लास हो गई है। ये बात सर कम, अभी ये स्टेप कम, ये जी लॉग फंक्शन लास्ट चीज, उसके बाद देखेंगे अच्छा। बात नेक्स्ट लाइन। हाँ यहाँ पे था, तो 0 से 1 के लिए थीटा x और x ये सब 0 से 1 के दरमियान है। तो 1/1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 1, लिहाजा उसका रेसिप्रोकल जो है वो लेस देन 1 होगा। Then one. जब ये लेस देन 1 है तो मैंने इसको उड़ा दिया यहाँ से, और दिस इज नो मोर इक्वल टू दिस, दिस इज नाउ लेस देन इक्वल टू x⁻n/n। अच्छा जी, now further x belongs to 0 to 1, तो x⁻n की लार्जेस्ट वैल्यू 1/n है, तो मैंने इस इनइक्वालिटी को जारी रखा 1/n। now 1/n goes to 0 as n approaches infinity, and remainder according to this line is less than 1/n। तो जब 1/n is approaching 0, remainder is definitely going to 0। ओके, ये 0 से 1 के पार्ट हो गया। -1 से 0 तो कॉशीज फॉर्म कंसीडर किया। ये जो स्टेप्स हैं अब इनको जरा खुद समझ लेना, मैंने लिखा हुआ है एक एक स्टेप अलग अलग, क्या चीज किससे कम है जिसकी वजह से क्या चीज गोज टू 0 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। Once I have proved that from -1 not included up to 1, the remainder goes to 0 as n approaches infinity. That means ln x1 + x is an infinite series, which is simply x - x² /2, the result which is written in most of the books at the elementary level.
लेकिन ये जो एलिमेंट्री लेवल पर रिजल्ट लिखा गया है, इसके पीछे क्या कहानी है वो मैंने आपसे डिस्कस की कि ये सब मुमकिन होगा तो फिर ये लिखा जा सकता है। वन लास्ट थिंग अबाउट दिस, हाँ कुछ पूछ रहा है कोई? हमने एक हिस्सा 0 से 1 के लिए कंसिडर किया, एक हिस्सा -1 से 0। यहाँ पे 0 और 1 दोनों शामिल थे, यहाँ पे -1 और 0 दोनों शामिल नहीं है। क्यों हमने इंटरवल -1 से 1 कंसीडर किया? log of 1 plus x is valid up to x greater than -1। अगर x -1 इजाजत दे दूं तो ये 0 हो जाएगा और log 0 डिफाइन नहीं है। तो ये एक्सपेंशन जो है वो लिखी गई है -1 से 1 तक के लिए, राइट? और इस एक्सपेंशन के डेरिवेटिव्स लिखते वक्त जब हम डेरिवेटिव लिख रहे थे तो हमने 0 इस्तेमाल किया था, यानी log of 1 plus x के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं फॉर x = 0, x = 1 के लिए भी करते हैं, x = -1 के लिए नहीं करते। हाँ, -1 से बड़ा ले लें तो फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कंसीडर दिस इंटरवल। सो जब भी तुम किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन लिखा देखो e⁻x का, ये चीज जो है रिमाइंडर का इशू, that needs to be resolved before any finite expansion can be turned into an infinite expansion. With this note, I terminate today's discussion. First, let me stop the recording. Thank you, sir. असल में टाइम लेंथ के हिसाब से तो क्लास बहुत रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई सर। हैं? रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई सर। बंद नहीं की मैंने अभी।